I'm sharing this with you being the spiritual house of God. और मैं ये आपके लिए इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आप परमेश्वर के आत्मिक घर में बने रहिए। Amen. You are the spiritual house of God. आप परमेश्वर के आत्मिक घर हैं। Do you see? Can you take that? Can you take that? Can you take that, beloved? मेरे प्रिय, क्या आप इसे ले सकते हैं? See, you not looked yourself. आपने कभी अपने आप को इस तरह से देखा ही नहीं। You are the spiritual house of God. आप परमेश्वर के आत्मिक घर हैं। You are the God carrier. आप परमेश्वर को लेके चलने वाले व्यक्ति है। Hallelujah. हालेलुया। So God is inside you. परमेश्वर आपके अंदर है। God is outside you. परमेश्वर आपके बाहर है। God is made up of you. परमेश्वर, आप परमेश्वर की तरह बने गए हैं। He is the head and we are his body. वो सिर है, हम उसके शरीर हैं। That is why church should be so important to you. इसलिए कलीसिया आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होनी चाहिए। Now you are a spiritual house of God. आप परमेश्वर के आत्मिक घर हैं। Lay your hands upon your head. Say, I'm a spiritual house of God. मैं परमेश्वर का आत्मिक घर हूँ। Are you excited that you are a God carrier, beloved? क्या आप उत्साहित है कि आप परमेश्वर को लेके चलने वाले व्यक्ति हैं? Are you excited you are a God carrier? क्या आप परमेश्वर को लेके चलने वाले व्यक्ति, इस बात के लिए आप उत्साहित हैं? Hey, you are a God carrier, beloved. आप परमेश्वर को Hallelujah. लेके चलने वाले व्यक्ति हैं। Yes. In the old covenant, they thought Moses was a great personality, great person of God. He saw God face to face, and everyone said there is nobody like Moses. Who can be like Moses? Moses is the greatest of all the Old Testament covenant saints. और देखिए, और किसी ने कहा कि मूसा सबसे महान व्यक्ति था क्योंकि उसने पुराने वचन में परमेश्वर को देखा और वो बहुत ही बड़ा और महान व्यक्ति था। But when Jesus came, लेकिन जब यीशु मसीह आया, said, out of born of woman, जो स्त्री से जन्मा है, hey, there is not one greater than John the Baptist. और वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा नहीं है। I was asking the Lord, why John the Baptist is such a great person? He has overpassed Moses, he has overpassed Joshua, he has overpassed David, he has overpassed all the prophets put together, he has overpassed Elijah, he has overpassed Elisha. और देखिए, मैं परमेश्वर से पूछ रहा था कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इतना बड़ा क्यों है? वो यहोशू से, वो सारे भविष्यवक्ता मूसा से, सारे सभी से वो इतना बड़ा क्यों है? Lord said, परमेश्वर ने मुझसे कहा, because he prepared my way. क्योंकि उसने मेरे मार्ग को तैयार किया। He just prepared my way. क्योंकि उसने मेरे मार्ग को तैयार किया है। Amen. What does that prepared that way? I was asking, what does it mean? What is it? He was digging something and preparing your way. तैयार करना मतलब, मैं प्रभु से पूछा, तैयार करना क्या मतलब? कुछ खोद कर तैयार करना, ऐसा? The Lord said, no. परमेश्वर ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं। He said, before me coming, he made everything ready that I can start with my ministry. Amen. और देखिए, मेरे आने के पहले उसने मेरे लिए सब कुछ तैयार करके रखा ताकि मैं सेवकाई को तैयार कर सकूं। Oh, and God said, Jesus said, he is the greatest of all the women who is born. Put together, he is the greatest. John the Baptist is greatest. Hallelujah. और इसलिए यीशु मसीह कहता है कि सारे जितने लोग जो स्त्री से जन्मे हैं उसमें से सबसे बड़ा है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। But Jesus didn't stop there. लेकिन यीशु मसीह वहीं पे रुका नहीं, He turned around वो मुड़ा Yes, and he said, amen. "His least in the kingdom of God is greater than John Amen. the Baptist." Amen. Amen. और लेकिन जो परमेश्वर के राज में छोटा से छोटा है वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा है। Oh, you are greater than John the Baptist. आप Amen. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़े हैं। I was asking the Lord, why? मैं प्रभु से पूछा था क्यों? Oh, John the Baptist was greatest because he prepared the way for me. देखिए, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बड़ा था क्योंकि उसने मेरे लिए मार्ग को तैयार किया। I said, well, Lord, why am I greater than John the Baptist? मैं क्यों यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा हूँ? He said, son, you're not just a preparer for me, but you're a carrier of me. Hallelujah. और परमेश्वर ने मुझसे कहा कि तू सिर्फ मेरे लिए मार्ग नहीं तैयार कर रहा है, क्योंकि परंतु तू मुझे अपने आप को मुझे लेकर चल रहा है, इसलिए तू बड़ा है। I'm a carrier of God. मैं परमेश्वर Yes. को लेकर चलने वाला व्यक्ति हूँ। Lay your hands upon your head, said, I'm a carrier of God. अपने सिर के ऊपर हाथ रख के बोले, मैं परमेश्वर को लेकर चलने वाला व्यक्ति हूँ। No more experience of the devil. Kick that idiot out. और फिर अभी और शैतान का कोई अनुभव नहीं, उस शैतान को उसको बाहर कर दो। When you sleep, you shall see God. आप सोना चाहिए तभी आप परमेश्वर को देखना चाहिए। When you awake, you shall be, blessed, you will see God. Amen. और देखिए, जब आप जाग रहे हैं तभी भी आप उस धन्य परमेश्वर को देखना When चाहिए। you walk, you will see God. आज जब Yes. आप चल रहे तब परमेश्वर को देखना चाहिए। When you touch, you will touch God. Amen. आज जब आप छुएंगे परमेश्वर When छुएगा। you'll speak, God is manifested. और Amen. जब आप बातें करेंगे परमेश्वर आपके द्वारा प्रकटीकरण होना चाहिए।
महीना होने को आया है, तो 2 बार ऑपरेशन किया राड डाल के, तो अभी तीसरी बार बोला है कि तीसरी बार फिर ऑपरेशन जाएगा? हाँ, तीसरी बार बोल रहे हैं कि ऑपरेशन करने का है, नहीं तो आपका पैर पूरा काम से जाएगा। काम से जाएगा? हाँ। ओके, आमीन। और आपको दर्द है अभी भी? फिर भी ऑपरेशन करने के लिए मेरे को बोला है। फिर 2 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, बस तीसरा वेट ऑपरेशन- वेट वेट, अभी यहाँ पर ऑपरेशन होगा आपका। डैडी इसी वक्त वो हड्डी नया बना दे। आपने कहा अपने वचन में आप हड्डियों की रक्षा करता है, उनमें से एक भी टूटेगा नहीं। इसी वक्त नया हड्डी, नया हड्डी, नया हड्डी Amen. You're healed. You're free. Hallelujah. Basa dulu. चल चले बच्चों, चलो चलो चलो। बहन जो रो कर आई थी अभी मुस्कुरा रही है। हालेलुया! उसका मुस्कान की गवाही है। आगे हो गया पापा, कितने दिन से 2 महीने से मैं नहीं चल पा रही ठीक से। प्रेज जी, ये बहन बता रही है कि 2 महीने पहले इनका जो पैर है वो दरवाजे के बीच में आ गया था, जिसके वजह से इनके जो पैर की जो छोटी उंगली है उसका वो हड्डी है वो टूट गया था। और ये 2 महीने में बहन जो है 2 बार डॉक्टर के पास गई है और 2 बार सर्जरी भी हो चुका है, जिसका लगभग 50,000 के ऊपर खर्चा कर लिया है। और वो उंगली में रॉड भी बिठाया है, और हम रिपोर्ट में देख भी सकते हैं, एक्सरे में देख सकते हैं कि जो उंगली है, जो पैर की उंगली, वो टेढ़ी हो चुकी थी। इट इज क्लियरली टिल्टेड टू द लेफ्ट। और जब ये बहन यहाँ पर आए भी थी तो उनके पैर काफी सूजा हुआ था, बहुत ही हेवीली सूजा हुआ था, और उनका जो उंगली है वो भी लेफ्ट की ओर था। जो नॉर्मली स्ट्रेट होता है वो लेफ्ट की ओर था। लेकिन प्रेज जी, अभी आपकी प्रार्थना के बाद वो पैर का सूजन कम हो चुका है। जो उंगली जो लेफ्ट की ओर थी वो सीधी हो गई है, केवल आपकी प्रार्थना के बाद। प्रेज जी, हालेलुया। और डॉक्टर ने अभी कहा था कि 2 बार ऑलरेडी सर्जरी हो चुका है। डॉक्टर ने इन्हें कहा था कि फिर से तीसरा सर्जरी भी कराना पड़ेगा, सर्जरी के अलावा कोई और ऑप्शन है ही नहीं, और उसका भी खर्चा 50,000 के ऊपर है। लेकिन प्रेज जी, ये बहन को आपके प्रार्थना के ऊपर 100% विश्वास था कि आपकी प्रार्थना के द्वारा उनको चंगाई मिलनी ही है आज। और जैसे आपने प्रार्थना किया, जो उंगली टेढ़ी थी, जो हड्डी टेढ़ी थी, वो सीधी हो गई है। उंगली सीधी हो गई। 2 महीने से वो लंगड़ के चल रही थी, वो सीधी रीति से चल भी नहीं पा रही थी। लेकिन अभी आपके प्रार्थना के बाद उन्हें चल के देखा, वो आसानी से चल पा रही है, उनके पैर में कोई जंग नहीं है। हाथ उठाओ, प्रभु को धन्यवाद दो, प्रभु को धन्यवाद दो, प्रभु को